So now the next question is factorial. So find the factorial of a number. So why we find the factorial? क्यों करते हैं find factorial को? तो उसके लिए क्यों? तो factorial की definition यदि देखें तो क्या होता है? To find the arrangement, arrangement or possibility of element. Don't judge my writing here. We are just here to learn the concept. So focus on the concept. I am just saying with the writing. मतलब लिखने के साथ साथ I am just saying to you the things which I am exact writing on the board. So you can just take the help from my saying. ठीक है, टू फाइंड द अरेंजमेंट और द पॉसिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, इसलिए हम क्या करते हैं फैक्टोरियल का यूज करते हैं. सपोज वी हैव अ बुक्स, अंडरस्टैंड, one book is a maths, one is a bio, one is a chemistry. ठीक है, we have a three books. Want to arrange into the almirah. So what is the possibility to arrange the book? Means how many ways we can arrange the book? Like we can first put the maths books, then bio book, then chemistry book. Or we can first put maths books, then chemistry book, then bio book. Or we can put first bio book, then chemistry book, sorry, then chemistry book, then maths book. Or we can put a bio book, then maths book, then chemistry book. Or we can put first of all chemistry book, then bio book, and then maths book. Or we can put first chemistry book, maths book, and then bio book. So every case, maybe the first maths book will be first, then the rest will be any position like B, C, and C, B. So this is the six ways we can arrange the book into the shelf. Understand? Arrange means what position we can arrange the book into the almirah. So किस position में हम रख सकते हैं? We are talking about these things only. So what will be the possibility to arrange the book? क्या हो सकती है possibility को? क्या possibility हो सकती है या किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बुक को अरेंज कर सकते हैं? ये फाइंड करने के लिए या सपोज करो हम बुक को हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एग्जांपल लिया और यहाँ पे समझा. अब हम यदि मान लो किसी और चीज की पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं या फिर और किसी चीज की किस चीज की देख सकते हैं. सपोज किसी चीज को अरेंज करना है. सपोज वी हैव थ्री ब्लॉक्स, वन टू एंड थ्री. सो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द बुक्स? So find the possibility and arrangement. We use the factorial. So how we will calculate the factorial? But we will not do the same thing again again. What if we have a 10 books? Suppose करो हमारे पास में 10 books है, बायो की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, then history, geography, civics, Sanskrit, Hindi, English. How many books we have? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Till now we have a nine books. So we need one more book here. So we have chemistry, physics. So this is the 10 books we have, and we just wanted to arrange into the Almira. So how many ways we can arrange into the Almira? So we need to make the arrangement again the same which we have done for these three books. यदि तीन बुक के लिए करा तो हमको फिर से करना पड़ेगा इन बुक्स के लिए भी. तो इन 10 बुक्स के लिए अरेंजमेंट बनाना इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू डू दिस थिंग. So what we have this, the mathematician give the formula to us like for which we can take the help and calculate the things like how many ways we can possibility or how many possibility to create the arrangement of the book into the arrangement. कितने तरीके से हम बना सकते हैं. तो यहाँ पे हम फैक्टरियल का यूज करते हैं. सपोज यहाँ पे 10 बुक है तो हम क्या करेंगे 1 into 2 into 2, जब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हम उस इंटीजर पर पहुंच नहीं जाते जिसका क्या हमको क्या करना है फैक्टरियल निकालना है. तो ये करते हैं टिल 10 तक जाएंगे और सबका क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे. जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा. हम बोल सकते हैं कि दिस वेज वी कैन अरेंज द बुक इनटू द. ये एग्जांपल है जिससे आप क्या करो चीजों को रिलेट कर सको एक्चुअल एग्जांपल. सो यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. ठीक है, जैसे हमको क्या करना 4 का निकालना तो क्या करेंगे 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4. So how will be the total of this? What will be the total of this element? 2 3 ja, sorry, 2 3 ja 6, 6 4 ja 24. So this is the possible way we can arrange the book. If we have 4 books and we want to arrange it to the Almira, so how many ways we can arrange it? 24 ways we can arrange it. बट दिस इज द थिंग्स विच वी हैव अंडरस्टैंड. ये हमने सिर्फ क्या करा ये चीजें देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा इसको चेक करा. बट ये हम कोड में किस तरीके से इसको हम लिखेंगे.
ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कोड में देखना। तो सपोज करो यहाँ पे एक चीज और देखना है कि जो फैक्टोरियल जीरो होता है उसका आंसर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, उसका आंसर क्या होता है, वन होता है। सपोज करो हमारे पास में क्या है, जीरो बुक है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ सेल्फ है। तो सेल्फ, यदि हमारे पास में जीरो बुक है फिर भी सेल्फ एग्जिस्ट करेगी। हम सेल्फ में क्या कर रहे हैं, बुक्स को अरेंज कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास में क्या है, थ्री बुक्स है। तो हमारे पास में कितने सेट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट्स की बात करते हैं। सेट, सेट ऑफ एलिमेंट और सेट ऑफ बुक्स। हमारे पास में कितनी बुक्स है, वन टू, ए बी एंड सी। तो दिस इज द सेट ऑफ बुक्स, वी हैव अ थ्री सेट ऑफ बुक्स। अंडरस्टैंड। सो ये जो करली ब्रैकेट है क्या करता है, सेट को डिनोट करता है। किसको करता है, सेट को डिनोट करता है। और इसके अंदर जो है वो क्या है, एलिमेंट है। तो वी हैव अ थ्री सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। किसके अंदर, अलमीरा के अंदर। ठीक है, यदि हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में थ्री है तो थ्री का फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स। वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मगर सपोज करो हमारे पास में जीरो फैक्टोरियल है, मतलब कि एग्जिस्ट है, सेट तो एग्जिस्ट करेगा मगर हमारे पास में इसके अंदर क्या है, एक भी बुक नहीं है। बुक नहीं है, सेट एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे क्या, अलमीरा भी एग्जिस्ट कर रही है मगर अलमीरा आप क्या है, यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन। तो फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलमीरा एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में प्लेस है जो वेकेंट है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल का जो आंसर है, जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। लेकिन एक भी हमारे पास में बुक होती तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, पर हमारे पास में क्या है, एक भी बुक नहीं है, मतलब हमारे पास में सेट है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सेट की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, वन कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कोड को देखना है। तो अभी तक हमने बेसिक चीज देख ली। बेसिक चीज में क्या देख लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल केस हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं हम इसको एज केस। ये हमारा एज केस हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। ठीक है, एज। या फिर मान लो कि एक पर्सन है और यहाँ पे एक यूजर है। ठीक है, या फिर ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में क्या करा, एक 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 यहाँ पे क्या है, फील्ड है। उस फील्ड में क्या करा हमने, यहाँ पे बटन है फाइंड फैक्टोरियल। फाइंड फैक्टोरियल बटन है। जब भी हम इसमें इंटर नंबर, जो भी इंटर नंबर करेंगे उससे corresponding यहाँ पे हम ये करेंगे, तो इसको यहाँ पे क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो यूजर कोई सा भी नंबर इसमें पास कर सकता है, जीरो भी पास कर सकता है और जितना भी चाहे वो उतना पास कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे उस नंबर को ले लिया। जब इसने यहाँ पे नंबर पुट करा, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, फैक्टोरियल को, फैक्ट वैल्यू यहाँ पे, या तो आंसर कर देते हैं, इंटीजर वन कर दिया। अब यहाँ पे वन क्यों स्टोर करा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सपोज करो यूजर ने हमको क्या करा, इनपुट में जीरो दे दिया। तो जीरो दे दिया, क्या करेंगे हम, इसको डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देंगे, जीरो को। आंसर को रिटर्न कर देंगे, जीरो को नहीं, आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो यूजर के पास क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा एज आंसर। मर, यदि यूजर ने यहाँ पे वन इंटर करा तो भी क्या होगा, वन का फैक्टोरियल भी क्या होता है, वन ही होता है। एज इट इज वन भी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। मगर यदि यूजर ने यहाँ पे टू इंटर करा तो क्या करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप चलाते हैं। आई इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे टू कर देंगे। और कब तक चलाएंगे, जब तक कि हम उस नंबर तक पहुंच ना जाते हैं। हमारा नंबर ये आई प्लस प्लस। ठीक है, सपोज हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फाइव का कैलकुलेट कैसे करेंगे, सपोज हमारा एन इक्वल टू फाइव है, तो फाइव का फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए करेंगे वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। हम कब तक कैलकुलेट कर रहे हैं, जब तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब तक हम फाइव पे पहुंच नहीं जाते। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, आई को जब तक रन करेंगे जब तक कि हम फाइव पे पहुंच नहीं जाते। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, फैक्ट। अब ये जो फैक्ट आंसर है, आंसर में क्या करेंगे, हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसका, नए नंबर का। जैसे सपोज करो सबसे पहले हमारे पास में आंसर में क्या है, अभी के लिए आंसर में हमारे पास में वन है। ठीक है, उसके बाद में जो आई है, आंसर क्या है हमारे पास में वन है अभी। अब हमको क्या करना है, आंसर में आई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको क्या करना है, सपोज हमारे पास में आंसर ये है। ठीक है, हमारा कोई सा भी नंबर आएगा, सपोज करो हंड्रेड आया, या फिर हमारा फिफ्टी आया, या फिर हमारा पास टेन आया।
हमको क्या करना है, एक एक करके, सपोज करो अभी 1 है, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, 6 से करना है, मतलब कंटीजियस एलिमेंट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उससे हमको, कंटीजियस इंटीजर एलिमेंट से हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कब तक करेंगे, जब तक कि हम उस एलिमेंट पे पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो वैल्यू है 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यू वन बाय वन लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूप चला रहे हैं। लूप चलाने का कारण ही ये है कि हम ये वैल्यू को गेट कर पाए और एक एक करके क्या करें, इस आंसर से मल्टीप्लाई करें और उसको अपडेट कर दें। तो सबसे पहले अभी 1 में क्या है, आंसर में क्या है, 1 है। यहाँ क्या कर रहे हैं, आंसर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का। लूप क्यों 2 से चला है, क्योंकि 1 तक के लिए हमारे पास में वैल्यू है, हमको कहाँ से देखना है, 2 से। सपोज हमारा आई क्या, सपोज हमारा एन क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आंसर 1 तो हमारे पास पहले से, हम यहाँ पे आके चेक करा लूप में आई क्या है, 1 है। तो ये जो कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू 1 एन, तो एन क्या हमारा 2 है, आई क्या हमारा 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, ठीक है। तो ये चल जाएगा, तो कैसे चलेगा, आंसर में आई मल्टीप्लाई कर दो, तो आई क्या है हमारा 2 है, आंसर क्या है हमारा 1 है, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मगर जब सेकेंड बार लूप में जाएंगे तो आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 1। यानी यहाँ पे जो कंडीशन है ना आई प्लस प्लस, ये कब चलती है, जब पूरा लूप, आखिरी लूप के आखिरी एलिमेंट जब एग्जीक्यूशन होता है आखिरी लाइन का, तो क्या होता है, आई प्लस प्लस चलती है। कुल मिला के जब लूप एंड होने वाला आता है उसके बाद में जो लास्ट कोड ऑफ लाइन होती है, लाइन ऑफ कोड होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये स्टेटमेंट चलती है। तो लाइन ऑफ कोड क्या है हमारी, लास्ट आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई आई। अब आई प्लस प्लस चला तो आई क्या हो जाएगा हमारा 3। तो जो 3, अब ये कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो आई एन क्या हमारा 2 है, आई क्या हमारा 3 है, तो 3 क्या इससे छोटा है क्या, 2 से नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर क्या हमारा 2। तो फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 होता है क्या, हाँ 2 होता है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करना था, हमारा यहाँ पे कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है 4 के लिए। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24। मगर इसको कोड की मदद से करेंगे तो क्या होगा, 2। तो सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 2, ये हो जाएगा 2। एंड देन आई प्लस प्लस फर्स्ट एग्जीक्यूशन, सेकेंड में क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, आई क्या हो गया हमारा, आई हो गया हमारा 3 एंड फैक्ट हो गया हमारा 2। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या है हमारा, सॉरी फैक्ट नहीं, आंसर क्या है हमारा 2। तो आंसर मल्टीप्लाई बाय आई, आंसर क्या है हमारा 2, आई क्या है हमारा 3, तो क्या हो जाएगा 6। थर्ड बार लूप चलेगा, क्योंकि अब आंसर निकालने के बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, यानी कि आई 4 हो गया। अब यहाँ पे आई क्या है, 4 है। कंडीशन चेक होगी कि आई जो है वो इक्वल टू लेस देन एन है क्या, ठीक है। तो एन क्या हमारा 4 है, आई क्या हमारा 4 है, ठीक है, कंडीशन चलेगी। तो क्या होगा, आंसर में मल्टीप्लाई होगा आई, आई क्या हमारा 4, आंसर क्या हमारा 6 है, 6 × 4 क्या हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या होगा, अब जो लास्ट है, तो लास्ट में क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, कौन सी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, कि जो आई है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है क्या, एन क्या हमारा यहाँ पे 4 है, और आई क्या हमारा हो गया इंक्रीज होके 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, ये जो लूप है, ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो आंसर है ये रिटर्न हो जाएगा। तो आंसर में क्या है हमारा, आंसर में हमारा 24, तो आंसर सही है क्या 24, ये। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, इटरेटिव अप्रोच। इटरेटिव मतलब क्या होता है, लूप को चला के हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, वन बाय वन क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। तो लूप को चला के हमने क्या करा यहाँ पे, फैक्टोरियल को फाइंड करा, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच से हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको कोड को रन कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कौन सी अप्रोच, रिकर्सन अप्रोच, कि रिकर्सिवली हम कैसे कर सकते हैं फैक्टोरियल को फाइंड। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, इंटीजर लेंगे। इंटीजर लेने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, फैक्ट वैल्यू, फैक्ट या फिर आंसर ले लेते हैं। आंसर में क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, आई इक्वल टू 2 से, जो क्या होगा, आई इक्वल टू
सॉरी इक्वल टू एन के क्या हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू एन के बराबर, जब तक कि हम क्या करें एन तक ना पहुंच जाए तब तक इस लूप को चलाओ और आई में प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर आंसर में मल्टीप्लाई करना है किसको, आई को, और उसको किस में अपडेट कर देना है, वापिस आंसर में कर देना है, क्योंकि पहले वन था अब ये हो जाएगा तो आई को अपडेट कर देना है और यहाँ पे रिटर्न कर देना है आंसर। लेकिन यदि आई एन जो है यदि जीरो होगा तो क्या होगा, ये लूप रन ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आई की यहाँ पे वैल्यू क्या है, टू है। तो यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन एन, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एन जीरो है और आई क्या है हमारा यहाँ पे, आई हमारा टू है। तो टू क्या लेस देन इक्वल टू जीरो होता है क्या, नहीं, तो ये रन नहीं करेगी, डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा क्या आंसर। चेक करते हैं रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली रन कर रहा है, इसको एक बार और रन कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं सॉरी। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने क्या था फर्स्ट अप्रोच देखी, अब हम देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम बड़ा, ये अप्रोच। ठीक है, उसको यहाँ से, तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच वी हैव सीन हियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच, क्या देखेंगे यहाँ पे, रिकर्सिव अप्रोच। हाँ, एक चीज की बात यहाँ पर रह गई है, कौन सी चीज की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो और वन के लिए, ठीक है, जीरो और वन के लिए सपोज करो हमने क्या करा यहाँ पे, जीरो पास करा, क्या करा, जीरो पास करा, तो जीरो का फैक्टोरियल वन हो रहा है, वन का फैक्टोरियल क्या हो रहा है, वन हो रहा है। दोनों का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लूप का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लूप को बाईपास करते हुए हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं आंसर। सपोज करो हमारा फैक्टोरियल क्या हो रहा है, फाइव हो रहा है, फैक्टोरियल फोर हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वन इंटू टू, ये क्या कर रहा है, एक बार में दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कि हमें कितनी बार रन लूप को रन करना पड़ रहा है। सपोज करो हम फोर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब पहली बार रन लूप रन होगा, ठीक है, तो कितनी बार रन करेगा, हमारे पास में यहाँ पे फैक्टोरियल फोर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमको चार बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। पर यहाँ पर हम कितनी बार लूप को रन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एंड। अब हमको देखना है कि कितनी बार हम लूप को रन करें, तो जब फर्स्ट बार लूप को रन करेंगे तो क्या होगा, वन इंटू टू, जो कि हो जाएगा हमारा टू। सेकेंड बार होगा तो क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री, जो हो जाएगा सिक्स। जब थर्ड बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू फोर, विच विल बी 24। तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर रनिंग द लूप, एन माइनस वन, एन क्या है हमारा फोर, और यहाँ पे कितनी बार कर रहे हैं, थ्री, तो ओवरऑल हम कितनी बार कर रहे हैं, एन माइनस वन। सपोज हम यहाँ क्या करते हैं, फाइव की बात करते हैं, ठीक है, हमारा फैक्टोरियल फाइव है, हम कितनी बार रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो इवेंचुअली कितनी बार रन करना चाहिए, फाइव बार, मगर होगा कितनी बार, वन इंटू टू। ये जो वन है और ये टू है, ये क्या है हमारा आंसर है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा आंसर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू अभी है तो ये हो जाएगा टू, फिर ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा टू, और आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस हो रहा है, इससे थ्री हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा सिक्स है, आई प्लस प्लस, तो आई क्या हो जाएगी फोर, ये हो जाएगा थ्री, सिक्स, ये हो जाएगा 24, आई प्लस प्लस, आई हो जाएगा फाइव, और ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 24, फाइव जा, ये हो जाएगा 22, 10, 21, 10, तो 120, और आई प्लस प्लस होगा तो ये सिक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा। तो कितनी टाइम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूप चला रहे हैं फोर टाइम, बट एन क्या है हमारा फाइव है, तो ओवरऑल हम कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कितना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एन माइनस वन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, लॉग एन, मर बिगो या थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं हम, एन टाइम रन लूप को रन कर रहे हैं, एन से ज्यादा बार हम लूप को रन नहीं करेंगे, और ना ही ऐसी सिचुएशन आएगी जब एन के ज्यादा बार लूप को रन करेंगे, कम टाइम कर सकते हैं मगर ज्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो थीटा एन हो जाएगी, लॉग एन नहीं, सॉरी, जो लॉग एन लिखा है लॉग एन नहीं होगा यहाँ पे,
यहाँ एन होगा, मगर किस टाइप का, थीटा या ओ? तो ये हो जाएगा थीटा। थीटा एन क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। log n नहीं होगी, log n मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या करा था, इटरेटिव देख रहे थे हम। अब हम देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच। तो रिकर्सिव में क्या करते हैं हम, फंक्शन कॉल करते हैं। सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट, ये वही सिनारियो है। यहाँ पे हमने क्या करा, उस नंबर को लिया जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना। पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हम साइड बाय साइड इटरेटिव अप्रोच का कोड भी लिख देते हैं, ताकि इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आंसर इक्वल टू 1, लूप फॉर int I इक्वल टू 2, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, एंड देन आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई I, एंड लूप एंड रिटर्न आंसर। तो ये जो है हमारा, ये लूप है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये इटरेटिव अप्रोच हो गई। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जीरो को किस तरीके से हैंडल करा है, यहाँ पे तो जीरो क्या हमारा एज केस है, हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि यदि मान लो, इफ यदि n इक्वल टू जीरो होगा तो क्या करना है। तो यदि n इक्वल टू जीरो हुआ, इन दिस केस व्हाट वी विल डू इट, हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न वन, रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, ऑलवेज वन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, जब हम क्या करते हैं लूप वाला, सॉरी रिकर्सन वाला चीज करते हैं, रिकर्सिव अप्रोच करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, किसी न किसी एक एज केस को फाइंड करना पड़ता है, जो क्या करेगा, उस फंक्शन कॉल को रोकेगा। क्या करेगा, उस फंक्शन कॉल को रोकेगा, तभी जाके क्या होगी, फंक्शन कॉल लगेगी। बताता हूँ अभी किसमें। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे एन मल्टीप्लाई, एन मल्टीप्लाई फैक्टर एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारा सबसे पहला फंक्शन कॉल है, सपोज हमको फाइंड करना है फैक्टोरियल 4 के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हमारी फंक्शन कॉल कैसे लगेगी, जैसे क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये कंडीशन में चेक करेगा एन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, एन क्या है, अभी 4 है। ठीक है, यहाँ पे आया, चेक करेगा एन क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद में ये वाली लाइन प्राइस ने चेक करा कि एक और फंक्शन कॉल लग गया, उसमें पास क्या कर रहे हैं, एन माइनस वन पास कर रहे हैं, यानी कि 3 पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 पास कर रहे हैं, एक और फंक्शन कॉल लगा, फिर से यहाँ आ गया, अब इसके पास 3 आ गया, यहाँ चेक करा 3 इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है। फिर से यहाँ चेक करा एन क्या है, 3, अब 3 हो जाएगा, एन जो हो जाएगा वो 3, यहाँ पे एन जो था वो क्या था, 4 था। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे एन क्या हो गया, 3 हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे देखा, फिर से फंक्शन कॉल लगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 2। एन माइनस वन पास कर रहे हैं ना, तो अभी एन क्या है हमारे पास, 3, तो 3 माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 पास करा। फिर से यहाँ पे करें, यहाँ पे चेक करा, वापिस यहाँ है, रिटर्न में देखा एन क्या है हमारा, 2, अब एन वन 2 है। फिर से फंक्शन कॉल लगाया, अब क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1। फिर से नीचे गए, अब क्या हो जाएगा, एन 1। फंक्शन कॉल लगाया, ये क्या होगा, 0। तो 0 यहाँ पर है, हमको पता है कि हमको कब एंड करना है, क्या करना है, कब हमको क्या करना है, टर्मिनेट करना है फंक्शन को। तो इवेंचुअली कौन सी मेथड का या कौन सी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, हम यहाँ पर रिकर्सिव अप्रोच में ये वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। कौन से, एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई एन माइनस थ्री। ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि हम कहाँ पहुंच न जाए, जीरो पे पहुंच ना जाए। कहाँ तक, जीरो पे। ये ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो फंक्शन कॉल लगा रहे हैं। तो डिसाइड कौन करेगा कहाँ पर रोकना है, वो एज केस जो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन में लगाएंगे। तो एज केस में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर दिया। सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ने क्या करा, जीरो पास कर दिया, जीरो पास कर दिया, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, यहाँ पे जीरो पास करा तो रिटर्न वन कर देगा। तो जीरो का फैक्टोरियल वन ही होना चाहिए। यदि सपोज करो वन पास करा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पे वन एन है, और वापिस से फंक्शन कॉल लगेगी एन के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न। यहाँ पे चेक करा एन इक्वल टू जीरो हो गया, तो जीरो क्या रिटर्न करेगा, वन, तो इसने वन रिटर्न करा, किसको रिटर्न करेगा, इस मेथड पर रिटर्न करेगा, जो मेथड ने फंक्शन कॉल लगाई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन आ गया। अब ये वन मल्टीप्लाई वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फैक्टोरियल चेक करा,
ठीक है। तो फैक्टोरियल वन क्या है? फैक्टोरियल वन क्या है यहाँ पे? फैक्टोरियल वन जो है, सॉरी, एफ एन इक्वल टू जीरो, जैसे ही एन इक्वल टू जीरो है इसने वन रिटर्न कर दिया। वन रिटर्न होके कहाँ जाएगा? वन रिटर्न होके कहाँ जाएगा? जहां से ये कॉल हुआ था। कॉल कहाँ से हुआ था? जीरो से हुआ था। सपोज करो ये जीरो पास करा फंक्शन में, फंक्शन में पास करा। यहाँ पे ये इफ कंडीशन चली, इफ कंडीशन इक्वल टू जीरो हुई तो इसने रिटर्न वन कर दिया। रिटर्न वन किसको होगा? ये वाले फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन कॉल तो यहाँ से लगा है। यहाँ पे वन आ गया तो वन मल्टीप्लाई वन कितना हो जाएगा? यहाँ पे वन हो जाएगा। अब ये जो वन है ये कहाँ पे जाएगा? इस फंक्शन पे जाएगा, क्योंकि कॉल कौन कर रहा है? फंक्शन कॉल कर रहा है। यहाँ पे एन का कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये वन उठ के यहाँ पे चला जाएगा। अब ये क्या हो गया? फैक्टोरियल, यह हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू। अब ये जो टू है ये कहाँ उठ के चला जाएगा? ये वाले फंक्शन कॉल पे। अब यहाँ पे क्या हो गया? टू, और ये क्या था? थ्री। तो थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा? सिक्स। अब ये सिक्स उठ के इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर। फोर मल्टीप्लाई सिक्स क्या हो जाएगा? 24। इस तरीके से क्या होता है, जो रिकर्सिव अप्रोच वर्क करती है। ठीक है, किस तरीके से वर्क करती है? इस तरीके से। ये क्या होता है ना, मैथड कॉल स्टेक होती है। क्या होती है? मैथड। यदि किसी भी चीज समझना है कॉल करते वक्त, यदि ये वाली अप्रोच समझ नहीं आ रही है, ये वाली बेस्ट अप्रोच है। ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे ट्री बनाया था ना, वन बाय वन करके, तो ये वाली भी बेस्ट अप्रोच है। यदि नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। सपोज पहली बार हमारा क्या था? एन। पहली बार हमारा एन क्या था? फोर था। और जैसे ही फंक्शन कॉल लगाई, है ना, और यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल लगाई, फंक्शन एन माइनस वन यानी थ्री, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एन क्या हो गया? थ्री हो गया। फिर से फंक्शन कॉल लगाई टू के लिए, फिर यहाँ आ गया टू। फंक्शन कॉल क्या होगा? यहाँ पे वन। फिर जैसे फंक्शन कॉल लगाई यहाँ पे, किसके लिए? जीरो के लिए, तो यहाँ आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन जीरो हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पे कोड चला, कौन सा वाला? ये वाला। इफ एन इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? रिटर्न कर दो वन। फिर रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न किसको होगा? इस मेथड को होगा, क्योंकि मेथड कॉल कर रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एन क्या है? टू है, तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई वन कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? टू। अब ये टू किसको रिटर्न करेंगे? इस मेथड कॉल को, वन वाली को। अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू रिटर्न हो जाएगा, तो टू, और इसके पास में एन क्या है? टू। टू इंटू क्या? फोर हो जाएगा। ये फोर इसको रिटर्न हो जाएगा, तो थ्री इंटू फोर क्या हो जाएगा? ट्वेल्व। ट्वेल्व इसको रिटर्न हो जाएगा, तो फोर इंटू ट्वेल्व क्या हो जाएगा? सॉरी, फोर इंटू टू इंटू टू फोर। सॉरी, यहाँ पे एन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे जब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जीरो होगा, वन होगा, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा? वन होगा। और वन माइनस वन, माइनस वन क्या होगा? क्योंकि एन माइनस वन होता है फार्मूला। यहाँ एन क्या हमारा? वन है, तो वन माइनस वन जीरो। जीरो हमने यहाँ पास करा, तो यहाँ पे इवेंचुअली रिटर्न क्या हो रहा है? वन। तो वन इंटू वन होगा। यहाँ पे वन इंटू वन क्या होगा? वन। और ये वन इसको रिटर्न हो जाएगा। अब ये वन इंटू टू होगा। ये टू है, ये वन है, ठीक है। अब ये टू इसको रिटर्न होगा, तो फोर टू जा, हाँ टू इसको। अब ये थ्री है, ये जो टू है ये किसको रिटर्न हो जाएगा? ये इसको रिटर्न हो जाएगा, थ्री वाले एन को। अब एन के पास में ये हो जाएगा सिक्स। अब ये सिक्स जो है वो इसको रिटर्न हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फोर इंटू सिक्स, जो हो जाएगा 24। ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? मेमोरी का यूज हो रहा है। ये जो मेथड कॉल स्टैक है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से फंक्शन कॉल रिटर्न होगी तो ये वाली फंक्शन मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। फिर ये जैसे वैल्यू रिटर्न करेगा सेकेंड वाला, इसको क्या रिटर्न करेगा? ये वन है, ये भी वन है, तो क्या रिटर्न करेगा? वन रिटर्न करेगा। जैसे ही इसको वन रिटर्न करेगा ये मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। फिर जैसे ही इसको रिटर्न करेगा क्या? टू, तो ये वाले फंक्शन मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। तो इवेंचुअली जैसे जैसे फंक्शन कॉल करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? मेथड कॉल स्टेक फुल होते जाएगी। कब तक कॉल होगी? एन नंबर ऑफ टाइम्स तक कॉल होगी, या फिर बोल सकते हैं एन प्लस वन तक। क्यों? एन क्या है हमारा? वन से लेकर फाइव तक क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये एन नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए। पर हम क्या कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या? किस लिए? जीरो भी, जीरो के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एन प्लस वन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एन प्लस वन मेमोरी लगेगी हमको, किसके लिए? रिकरेसिव अप्रोच को यूज करने के लिए, या रिकरेसिव रिकर्सिव अप्रोच जब यूज करेंगे हम, उसमें हमको क्या लगेगा?
n+1 मेमोरी यूज करना पड़ेगी, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सिलरी स्पेस कितनी यूज करेंगे हम, 1 + n+1। ठीक है, तो व्हाट इज विच विल बी द बेस्ट situation, or what we can say that which will be the best case or code to use it, iterative or the recursive, कौन सी अप्रोच बेस्ट है, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन रहती है, तो सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि यदि कोड लेंदी होता है, इटरेटिव में क्या होता है कभी कभी कोड लेंदी हो जाता है, बट हम वी डोंट वांट दैट द कोड शुड बी लेंदी, कोड लेंदी हो तो हम क्या करते हैं, रिकर्सिव अप्रोच का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कोड कॉम्प्लिकेट और कोड लेंदी ना हो उसलिए, मगर रिकर्सिव अप्रोच में ऑलवेज इट विल यूज द मेमोरी, इटरेटिव अप्रोच विल नॉट यूज द मेमोरी मोस्ट ऑफ द टाइम, और वी कैन से दैट ज्यादातर टाइम पे ये मेमोरी यूज नहीं करता है, यदि जरूरत होती है तो ही। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्या होता है, इटरेटिव अप्रोच होती है, तो वी विल प्रिफर टू डू इटरेटिव अप्रोच ओवर द रिकर्सिव। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, थीटा एन, बट जो स्पेस है वो भी क्या हो जाएगी, थीटा एन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ओ एम। ठीक है, तो ये वो देख लिया हमने कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, और दूसरी बात हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इटरेटिवली सोल्व करेंगे इसको या फिर रिकर्सिवली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा था यहाँ पे, ये हमारी इटरेटिव अप्रोच थी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं रिकर्सिव अप्रोच। तो रिकर्सिव अप्रोच में क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले वो देखना पड़ता है कि हम लूप लूप को कब एंड करना है, जब एंड करना है जब n == 0 हो जाए, और रिटर्न कर दो 1, RETURN, रिटर्न 1 कर दो। और क्या करो, नहीं तो जब तक कि फंक्शन कॉल चलाओ जब तक कि वो 0 ना हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ओके, तो ठीक है, n-1, और इसको कर देते हैं रन, और देन वी विल सबमिट इट। ठीक है, एक्सपेक्टेड दोनों सेम आ रहा है, सक्सेसफुली रन कर दिया। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट हो गए, बट आई विल गो फॉर द इटरेटिव अप्रोच एंड इट्स योर कॉल वेयर टू गो। ठीक है।